बैकलॉग था भाई साहब, हमने 16 बैच लगाए। इसमें 5 लाख लेते हैं ना, पता चला भाई आवाज होगा था। सर कैसे हो इधर? ठीक हो? आओ इधर। चर्चा हो ही रही है। आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम कितने साल हो? और सारा आप सुनाएंगे तो बहुत बढ़िया। जयपुर चले गए आपका प्यार है वैसे 7-8 दिन हमारे भी क्या होता है? एक लेना बात हो रही थी, क्या वो क्या ऐसा तो कुछ क्या नहीं क्या ऐसे अरे साले दिल्ली में जो है बहुत आराम है कुछ नहीं भैया बस बोलने के लिए बोलता हूँ, बोलने के लिए
मजा आ रहा है आपके राज पेट में कैसे हाँ हम लोग आजकल बढ़िया है भाई members to be taking चेतना की भूमि पे संकल्प नया होना है, ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता को खोना है। मंच ये विचार का आह्वान है, पुरुषार्थ का, विश्व में फिर से सनातन का ध्वज पिरोना। Respected seniors on dais, esteemed guests, and the foundational minds of this movement. Namaskar. It is a profound honor to welcome the sharpest intellects of this society to this inaugural meeting of the intellectual cell of Vishwa Hindu Mahasangh. Look around this room. If you look at the people sitting around you, we are not just a gathering of individuals. We are a collective powerhouse where traditional wisdom meets the modern leadership. That's the intellectual self of Vishwa Hindu Mahasangh. Vishwa Hindu Mahasangh, also known as World Hindu Federation, is a prominent global socio-cultural organization. This organization is dedicated to the revival, protection and propagation of our Sanatan Dharma and Hindu cultural values. This organization was founded by Sri Mahant Avidyanath Ji, the former chief priest of the Gorakhnath Math. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh and current chief priest of Gorakhnath Math served as its former president for the longest term and is currently the primary national patron of Vishwa Hindu Mahasangh. If you would have chance upon visiting the website of Vishwa Hindu Mahasangh, you would have seen Yogi Ji's name written all there as the national patron. Now, this organization is currently led by Mahant Shri Surendranath Abdul Ji. He'll be joining us in a short while. He'll be joining for a short term as well. Alongside the international leadership, such as Srimati Asmita Bhandari Ji and our very own Shri Harit Agrawal Ji, who is the National Vice President of Vishwa Hindu Mahasangh. There are multiple specialized cells that operate under the flagship of Vishwa Hindu Mahasangh. And the newest one is this one, the intellectual cell, of which we are all the founding members. And founding members is a bit different than the members who will be joining in the due course. Our target, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उनके आदेश से हमारा टारगेट है कि हमें 2026 के अंत तक इस संस्था को इतना बड़ा बनाना है कि इसमें कम से कम 2,500-3,000 मेंबर्स हों। And the founding member is the team who leads the formation and the expansion of this organization. Today we are gathered in this inaugural meeting for primarily few reasons. First, of course, the most important one, to take the blessings of the governing body of Vishwa Hindu Mahasangh, of which I am going to introduce in a short while. To welcome all the founding team members here. That's you are. Opportunity of meeting the members with other members, which was happening for some time. And I think take most of the opportunity of the sessions when we are not in a formal setup during the lunch or during the breaks, to be talking to each other and to be finding opportunity to interact with each other, introduce your standing in the society. And also the most important, brainstorm on the way forward. हमने इसको फॉर्म तो किया है, अब इसको हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये ना हमारी गवर्निंग बॉडी डिसाइड करेगी, ना ये हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए इस बॉडी को खड़ा किया गया। So without taking much time, I would like to introduce and invite our members of our governing body on the stage. Let me start with the introduction. Of course, our president is Shri Surendranath Abdul Ji, who is the Rashtriya Adhyaksh and also Kalka Mandir के श्री महंत जी हैं. He'll be joining us in a short while. हमारे बीच में है आचार्य सचिन वशिष्ठ जी, who is the national treasurer of Vishwa Hindu Mahasangh, और साथ में है विक्रम गोस्वामी जी, is the spokesperson, the national spokesperson, as well as the organizational secretary. To begin with, I would like to invite Mr. Harit Agrawal on the mic to say a few words
about what is his vision in getting this a start. Please welcome Mr. Harijan. आप सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विक्रम गोस्वामी जी, संगठन मंत्री, आपका बहुत स्वागत है। सचिन वशिष्ठ जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, इनका बहुत स्वागत है। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ क्यों बता रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल सेल क्यों बना रहे हैं। मेरा मानना यह है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए सिर्फ ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं की जरूरत तो है ही है, साथ में ऐसे लोगों को भी जरूरत है तो सोचे, विचार करें, रिसर्च करें और अपने नए लॉजिकल आइडियाज दें। यहाँ पे मेरे मित्र लोग बैठे हुए, बीच में पंकज बंसल हुए NBFC चलाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अपनी NBFC के थ्रू कैसे मदद कर सकते हो, संगठन की, समाज की, राष्ट्र की। तो इन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छी बात बोली, जो हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे काम करने वाले होते हैं, मान लो टिकटिंग वाले हैं, ये सब 10-10 हज़ार का लोन लेते हैं साहूकारों से सेम डे पे और शाम को उनको 10,500 रुपये वापस कर देते हैं। महीने में 20 दिन उन्होंने काम किया तो पैसे तो उनके पास 10,500 रुपये दिन के हिसाब से उन्होंने 10,000 रुपये दे दिया। उनका रिटर्न देखो कितना जा रहा है, 10,000 के ऊपर 10,000 रुपये। तो NBFC के थ्रू इन सब लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, हमारा संगठन अप्रोच कर सकता है, हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कि भाई NBFC के थ्रू सस्ता क्रेडिट लो, ये सारे काम हम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हाँ, बाकी फिर मैंने सचिन जी से बात पूछी कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज के लिए, संगठन के लिए। तो फिर मैंने बताया कि अगर हम सारे संगठन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ें, CS को जोड़ें, एडवोकेट्स को जोड़ें, तो हम सब लोग कनेक्टेड होते हैं अच्छे इंडस्ट्रीज वाले साथ। उनके साथ मिलकर हम स्कॉलरशिप की कोई स्कीम बना सकते हैं, नीडी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए। बाकी इंडस्ट्रीज के साथ हम जुड़े हुए होते हैं तो हम रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं। सोसाइटी के साथ मतलब सीड इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैंने उनसे पूछा कि किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि हम किसानों को ये समझा सकते हैं विदेश में किस क्रॉप की ज़्यादा नीड है तो उसका ज़्यादा उत्पादन करें तो वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे हमारी GDP में भी कंट्रीब्यूशन होगा, उनका भी सशक्तिकरण होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इन किसानों को CS के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, बैंक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, तो उनके लिए उसमें सशक्तिकरण। बाकी आप सब लोग हो यहाँ पे, सब अपने अपने आइडियाज़ होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए। लास्ट में बस यही बात कहते मैं अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए। जय सनातन धर्म, जय हिंद, भारत माता की। Thank you very much. I think just recapturing on the discussions that we had. मतलब हर एक चीज़ के साथ हमारे इस टॉपिक पे बड़ी बात हुई कि ये बना तो रहे हैं, पर लोगों का एक व्यू होता है, लोग उसको हमेशा, और बहुत लोगों ने पूछा जब हम इस संस्था के बारे में लोगों को अप्रोच कर रहे थे तो लोग, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश की, यार आप करना क्या चाहते हो, इससे अचीव क्या करना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात जो हमने बहुत सारे आइडियाज पर डिस्कशन किया, कुछ जैसे हरी जी ने आपको बताया, लेकिन हमने जो सबसे मतलब जिस चीज़ पे हमने कंक्लूड किया वो ये था कि जब हम सब लोग इकट्ठे हो ही रहे, और ये एक बार है कि इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे कुछ मित्र वर्चुअली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम क्यों ना आप ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दें, क्यों ना आप ही लोगों से पूछें कि आपका क्या व्यू है। और हम एक बार जब हम अपनी वेलकमिंग सेरेमनी कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देंगे कि हम आप सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने दिमाग से, आप अपने व्यू को बताएं कि हम किस तरीके से इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो विल कम बैक टू यू ऑन दैट वन। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा श्री विक्रम गोस्वामी जी को, ही इज द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी एंड स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ विश्व हिंदू महासंघ।
ये हमारे मार्गदर्शक हैं कार्यकारिणी सदस्य अग्रवाल जी के साथ, सचिन जी के साथ। तो इनका व्यू क्या है और आपको कैसी अनुभूति हुई है यहाँ पे आके, आपके व्यू हम लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी संगठन की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके विचार। और इस कक्ष के अंदर, इस हॉल के अंदर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगहों पर प्रतिष्ठित लोग हैं। तो मैं सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज है ना वो टाइम है। हम टाइम कहाँ दे रहे हैं? और जब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं कि इंटेलेक्चुअल सेल के जो साथी आज यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ उपस्थित हैं, मैं हृदय की गहराई से पुनः उनको धन्यवाद इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ। किसी भी संगठन को चलाने के लिए जब ऐसे विचार के लोग शामिल होंगे तभी संगठन संगठनात्मक दृष्टिकोण से बढ़ सकता है। ये तो समूचे भारत में विश्व हिंदू महासंघ काम कर रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी ने काम किया, बड़े महाराज अवेद्यनाथ जी के नेतृत्व में काम किया। आज वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। किसान प्रकोष्ठ, गोरक्षा प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठ अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं। यहाँ जरूरत इस बात की आन पड़ती है कि जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग, ऐसे समृद्ध विचारधारा के लोग जो वास्तविक रूप से समाज को नई दिशा देने का और ऊर्जावान साथी जब समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, तब जाकर कोई भी संगठन अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाता है जहां वास्तविक रूप में पहुंचाने की जरूरत है। संगठन केवल मंच के माध्यम से नहीं चलता है, संगठन ग्राउंड से भी चलता है। और संगठन को वास्तविक रूप से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होता है विचार। और यहाँ वैचारिक दृष्टिकोण से संपन्न लोग बैठे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए। साथियों, सम्मानित साथियों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों के दर्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पर बैठकें करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। जब आपके माध्यम से कोई बात पहुंचेगी तो वो बात वहां तक पहुंच पाएगी जहां तक हमको पहुंचानी चाहिए। हरित भाई, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार, धन्यवाद कि आपने ऐसे साथियों के साथ जो कि आज फाउंडर मेंबर के तौर पर आज विश्व हिंदू महासंघ के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे अच्छे लोगों के आपने दर्शन कराए, इनका साथ उनको मिलेगा तो विश्व हिंदू महासंघ एक नए आयाम को छुएगा, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ विश्व हिंदू महासंघ अपने काम को कर पाएगा। कोई भी राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उसको चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है युग की, आवश्यकता पड़ती है कोष की, आवश्यकता पड़ती है कार्यक्रम की। तो हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाए, उन चीजों को करने के लिए जरूरत किस बात की है? ऐसे लोगों की जो बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग कर सके। हमारे पास ईश्वर की कृपा से हम सभी संपन्न लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अपना अपना बिजनेस करते हैं, मेरा भी छोटा मोटा बिजनेस है, मैं अपना काम भी करता हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में संपन्न व्यक्ति है, मगर उस संपन्नता को यदि आप दिशा देने के लिए ऐसे लोगों को संगठन के साथ जोड़ते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि एक बार आदरणीय हरित जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि ऐसे साथी जब संगठन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि संगठन के पास सब कुछ होने के बावजूद अगर दिशा विहीनता के साथ में अलग अलग डाइवर्जन में चीजें चल रही हैं तो उसको दिशा में कैसे लाने का काम किया जा सकता है। और आपने हरित भाई ऐसे लोगों को चुना, यहाँ पर इस मंच पे, इस जगह पर ऐसे लोगों को आप लेकर आए हैं जो वास्तविक रूप में उन सभी यूथ को, उन सभी मातृशक्ति की महिलाओं को, बहनों को, उन सभी किसान भाइयों को, उन सभी शिक्षा प्रकोष्ठ के लोगों को दिशा देने का काम करें। ये तब संभव होगा जब हम सब ये सोचकर काम करेंगे कि विश्व हिंदू महासंघ एक ऐसा संगठन है जिसको राष्ट्र निर्माण के लिए अपने सर्वस्व को लगाना पड़ेगा, अपने विचारों को लगाना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं साहब, इस देश को जब आजादी मिली ना तो लोगों ने कहा कि देश को आजादी केवल प्रोटेस्ट के माध्यम से मिली थी, वो बहुत जरूरी था वो प्रोटेस्ट करना, मगर उस प्रोटेस्ट के पीछे किन लोगों का हाथ था? उस प्रोटेस्ट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, ये ऐसे लोग जो मानसिक रूप से संपन्न थे, मानसिक रूप से मजबूत थे,
जो पीछे रहकर सारे काम को कराते थे, वही लोग, वो उस युग के लोग आज अवतार लेकर ऐसे बैठे हुए, यहीं बैठे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को आजादी दी। आजादी ऐसे नहीं मिली थी, आजादी के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, और बहुत लड़ाइयों को लड़ने के लिए आप जैसे ही लोग थे जो इस लड़ाई को लड़ पाए। और आज भी जरूरत आन पड़ी है कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की समस्याएं, परेशानियां आप आए दिन देखते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। आए दिन आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को, पढ़ने को, जानने को मिलती है। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि लव जिहाद की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज लैंड जिहाद बढ़ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज आपके पास में समूचे भारत में काम करने वाला एक ऐसा संगठन है जिसको आपकी जरूरत है। आप मिलकर उन लोगों को दिशा देने का काम कीजिए, उनको साथ देने का काम कीजिए। आपको ग्राउंड लेवल पर एक मजबूत लोगों की टीम, अच्छे साथियों की टीम मिलेगी। आप उनके साथ जुड़ें और विश्व हिंदू महासंघ को जिस दिशा में ले जाने का काम परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन संत हमारे बीच में अब नहीं है, उन्होंने जो सपना देखा था विश्व हिंदू महासंघ बनाने का, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कालका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं, जो सपना इन संतों ने देखा है ना, उस सपने को हम तभी साकार कर सकते हैं जब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग प्रयास करते हैं कि इस भारतवर्ष से जातीय व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ये जातीय आधार में जो लोग विभाजित करने का काम करते हैं, प्रांतीय आधार पर जो लोग विभाजित करने का काम करते हैं, जो भाषा के आधार पर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, वो खत्म हो जाए। वो खत्म तभी संभव है जब हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मत और एक विचारधारा के साथ चलेंगे। आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके इस बहुमूल्य समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम गोस्वामी जी, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द आपने यहाँ पे कहे। बट ये हम अब यहाँ पे हम वापस आना चाहते हैं आपके पास, and I would like to come to few of you, but then I would also like to keep it open to someone, whoever wants to raise his hand and say a few words about how can we contribute, how can I contribute to this noble cause. कहते हैं कलम की धार से इतिहास बदल जाता है। I mean, we represent a column in some way, I mean, intellect represents a pen in some way. कलम की धार से इतिहास बदल जाता है, विचारों के उजाले से ही एक नया युग आता है। उठो कि आज बुद्धिजीवियों का ये संगम सनातन और राष्ट्र के उत्थान को एक नया मार्ग दिखाता है। On that note, I'd like to start from here. हमारे बीच में संजीव जी हैं, थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा कि आप अपने just say a few words and give a little introduction about yourself as well. I mean, whoever we are coming to, just say a few words about yourself, and then say how can we as professional, as intellectual, contribute to this work. धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद सुशील जी। हमें आने में देर जरूर हुई, लेकिन हम पूरी श्रद्धा से यहाँ आए हैं। और भाई साहब ने अभी कहा कि यूथ, भाई मैं यूथ तो नहीं क्लेम कर सकता अपने आप को, मैं यूथ वाली उम्र से गुजर चुका हूँ, लेकिन दिमाग और जो भी मेरे पास साधन है उससे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ संस्था के से जुड़ने के लिए, संस्था की मदद करने के लिए। मैं दो चीज़ों पे बस थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक तो बुद्धिजीवी बहुत ही, एक तो हमारे देश में ऑलमोस्ट अकाल सा ही पड़ गया बुद्धिजीवी। अच्छा, पहले मैं उससे पहले अपने बारे में कुछ बता, जिससे कि उसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाए आपको कि क्या फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1985, 87 में मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया। उसके बाद में 89 में इंग्लैंड में रहकर MBA किया। 89 से 98 तक मैं इंग्लैंड में रहा, अपना व्यवसाय किया, फैमिली बेस की अपनी, और उसके बाद मैं अपना सेल्फ के बिजनेस में, पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा बिजनेस था और अपना होटल वगैरह है मेरा, इस तरह की लो एक्टिविटी वाले काम करता हूँ, जिससे बहुत लंबा परिचित है। और मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है, सीमा गुप्ता भी अकाउंट, वैसे तो उनको अपने आप ही अपना इंट्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन वो भी अकाउंट्स के फील्ड से जुड़ी हैं। उनके फादर श्री आलू गुप्ता अकाउंट के एक महान बुक राइटर भी रहे हैं। अच्छा, तो मैं जैसा आपको कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जब मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव में आके मैं महसूस कर रहा हूँ
कि बुद्धिजीवियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हमारे समाज में, खासकर वैश्य समाज में और दूसरे हिंदू में बुद्धिजीवियों का हमेशा से सम्मान रहा है, उनको हमेशा मार्गदर्शन माना गया है और हमारा बुद्धिजीवी हमेशा से ही आगे रहा है। लेकिन मैं अब ये भी बोलूँगा कि बुद्धिजीवियों को अकाल पड़ रहा है। अकाल इस सेंस में पड़ रहा है कि जब मेरे फादर की जनरेशन थी तो 2 बच्चों का चलन था, उसके बाद वो गिर के 1 बच्चे का चलन रह गया। अब शादी इतनी लेट हो रही है बच्चों की, उसके बाद फिर वो आगे बच्चे करना चाहते हैं, रिलेक्टेंट है। मैं अपने घर में ये महसूस कर रहा हूँ कि तो मैं खुद अपने बच्चों का देख के बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ वो समाज का काफ़ी हद तक प्रतिबिंब करते हैं कि जो मेरे घर में हो रहा है वही लगता है समाज में भी किसी न किसी फॉर्म में आगे पीछे वही हो रहा होगा। तो एक तो हम लोग को अपने बच्चों को इस चीज़ की प्रेरणा देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी हमारे देश में पैदा हो, बिकॉज दे आर द इंजन्स, दे आर द इंजन्स ऑफ द सोसाइटी। इफ दे आर ओनली कोचेज एंड नो इंजन्स, देन द सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, ना समाज बढ़ सकता, ना देश बढ़ सकता। तो हमारे बच्चों को इस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए। आजकल वैसे भी सारी पॉपुलेशन को यही संदेश जा रहा है कि भाई इसमें ये बच्चों को पालना, बड़ा करना वो एक पर्सनल जॉय नहीं है, इज ऑफ कोर्स एक पर्सनल जॉय, बट ये सामाजिक ड्यूटी भी बन गई है कि हम अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें की और संदेश दें कि भाई ये आगे की जनरेशन का, हमारा समाज का, हमारा सनातन समाज जिंदा रखने के लिए, उसकी ग्लोरी वापस लाने के लिए ये सबका एक सामूहिक कर्तव्य है। तो पर्सनल की बात नहीं है इसकी। दूसरा इन्होंने कुछ इन्हें जो भी निवेदन किया कि हमें प्रेरणा दे सकती है कि हमें आगे बढ़ के बुद्धिजीवियों को उठाना चाहिए। हर क्षेत्र में कभी मेरे जैसे लोगों के पास हो, भगवान ने वो अवस्था भी दे दी है कि अब मैं ज़्यादा समय भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गृहस्थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो काफ़ी हद तक हमने पूरी कर दी है। तो अब हम समाज को ज़्यादा टाइम देने की तैयार है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अदिति का अभिनंदन करता हूँ, उनका प्रयास, उनकी इस प्रयास को सराहना करता हूँ और ये शुभचिंतक हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन का भी और अदिति का और आप सब लोग जो अपने घर से आए हैं और सब यहाँ पर अपना योगदान देने के लिए कि आप लोग जुड़े रहिए और से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। So amongst us is another prominent personality, and I would not like to talk about him. Let him talk about himself first. So introduce yourself and then a few words on the. Very good afternoon. Very good afternoon to everyone. And so मेरा नाम संजीव गुप्ता है। नाम mention here. अच्छा। So my name is Praveen Garg, and I did my art graduation from Shriram College of Commerce, appeared for the entrance examination, and became a chartered accountant in 1984. Then I practiced for a while, and I realized that I can't practice beyond a point. So I asked my father, who was CMD of a public sector company called Cement Corporation of India, and he knew Russian very well. So he told me that why not get rid of the civil services. So I just appeared for the civil services without studying much. So in the first attempt, I made it to audit and accounts, changed to railway accounts. Second, I was in IPS and third employees. And in IAS, then I got MP cadre. So my journey is of 35 years in MP cadre. Various districts. For 9 years I was just in the state. And I don't remember the number of districts which I have done. Then I became Secretary Finance. Being a chartered accountant, there are not many chartered accountants in the civil services. Of course, there is little awareness of chartered accountants to become a civil servant. But during our time, it was hardly any chartered accountants. So in the state, at that point of time, I used to be the only chartered accountant in the IAS. So they made me Finance Secretary, and I moved on as MP of MPSIDC, Housing Board, Commissioner, Deputy Commissioner. Then I came on deputation to Delhi, and my first posting was Department of Justice as Joint Secretary. Then I was Joint Secretary Capital Markets, and I became Additional Secretary. I was given additional charge as CMD of Security Printing Corporation of India. So you can associate it with demonetization. So I was
charge of manufacturing or printing currency. That kind of time, this was 2016. Then I moved on to Ministry of Environment, Forest and Climate Change as Additional Secretary and retired from there as Special Secretary, Eco Secretary. So that's in brief. And after retirement, I worked for a foundation on climate change for about 3 years. I am independent director in 5 companies so far at arbitrations. I keep doing a lot of things, and social work is my passion, because you can imagine that after doing CA and doing all those things and leaving Delhi, and my first posting was Buster, so social work is my passion, and I congratulate Bharatji and Washington for forming this organization. Because I think this was little, and I must tell you that not only because I was in civil services, but otherwise also I've read many spiritual books. So we understand what Hinduism is all about. So I think the missing link, at least I'm not an authority on such subjects at all, was to have intellectuals gather around our Sanatana, our philosophy, and go to the original scripts. I'm trying to read Upanishads, and there are few Upanishads which are very enlightening, but they don't talk about many things which we are talking about Hindu religion. So it's a very good move, at least the intellectuals. And I think there are many of us here are chartered accountant and all with accountancy background. It's a very dry subject. I don't know, many of you will not agree, because we bread and butter out of that. But a chartered accountant need to move on beyond accountancy, beyond finance, beyond Companies Act, beyond what JB is doing, RBI is doing. And one way, and very fruitful way, can be to move towards philosophy. And the philosophy of Sanatana Dharma. And there are 6 schools of philosophy, there are so many Upanishads, there are so many things which are there. Of course, Ramcharitmanas and Mahabharata have our philosophy in a very concise manner and a narrative manner, which attracts the common man. But all being educated and highly intellectual people, I think this missing link, they are trying to put that missing link in place. And I'm a small man, so, but if any way I can contribute in, arranging or having this, taking this discourse further towards, I won't say enlightenment, but better understanding of our own civilization, of our own culture, and our own religion, and which is not restrictive at all. I must tell you that. So I'm very happy to be here, and I wish all the best to this organization which is coming up. Thank you very much, sir. I would like to come a little bit more backward now. Let me start with Kamal Bhai. Kamal Bhai बैठे हैं यहाँ पे. I'll come to you, Balsa. Gupta ji, Gaurav Gupta ji, मैं आ रहा हूँ आपके पास. Like one by one. Please be prepared with the thoughts. Let's start. Sushi for bringing all of us here and building this organization. तो मेरा नाम कमल कुमार कौशिक है. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 99 बैच, बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की. मैं हमेशा कॉर्पोरेट साइड में रहा. I was in banking, chief executive officer for an affordable housing company. Now I started my own strategic advisory firm in the same space. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जब बनता है तो उसका एक उद्देश्य है. तो मैं बैठा यही सोच रहा था कि एक समय था जो हम सब जानते हैं, उस इंटेलेक्चुअल, उसके जैसा इंटेलेक्चुअल शायद आज तक हुआ भी नहीं, आचार्य चाणक्य. उन्होंने एक संगठन बनाया और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया. बट उसका पर्पस क्या था? देश को विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षा प्रदान करना. आज जो हम इंटेलेक्चुअल संगठन जो बना रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि हमारे देश के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की एकता के लिए ठीक नहीं है, या हमारे देश की आने वाली जनरेशन्स की हेल्थ और उनके माइंड्स के लिए ठीक नहीं है, उन सब चीजों को एड्रेस करना है. वो भी हमारा, मेरे हिसाब से, संगठन का एक
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया की है। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को सोशल मीडिया की नाम की वैक्सीनेशन दे सकते हैं इस इंटेलेक्चुअल सेल से? हम सब लोग अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग स्कूल यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। क्या हम कुछ ऐसी एक अपना कार्यक्रम बना के, क्यूरिकुलम बना के यहाँ और स्कूलों में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें कि ये कितनी खतरनाक है हमारी जनरेशन के लिए? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सुशील, थैंक यू हरे। और जैसा प्रवीण जी और संजीव जी ने बताया कि हमें समय देना है, उनके पास समय हम सबके पास है। एक चीज जो मुझे लगती है किसी भी इस तरीके के संगठन की सफलता का जो आधार है कि अगर हम बिना अपेक्षा किए सेल्फलेसली अपना समय देंगे अपनी मर्जी के साथ, तो मेरे ख्याल से शायद हम बहुत अच्छा काम कर पाए। धन्यवाद। So the nearest is Bansal Saab. Let me hand over the mic. थैंक यू। हरित भाई ने बुलाया, आज बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, मेरे ख्याल से सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं मैक्सिमम 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी ने पूछा कि मैं सर्वगुण संपन्न कोई इंसान है क्या इस धरती पे, या कैसे बना जा सकता है, तो मैंने रिप्लाई किया कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके ऊपर कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आता। और शायद इंस्टीट्यूट में भी अपन सुनते आए कि हमारी लार्जेस्ट जो है हमारी इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, तो अकाउंटिंग बॉडी है। और सीए का कोर्स जो आप लोगों ने हमने किया है, शायद बड़ी मेहनत का ही काम था, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। और जिस संस्था में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट जुट जाए तो उसके बाद तो संस्था कहीं भी जा सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो संस्था प्रोग्रेस ना करे। तो जैसे ही हिंदू महासंघ में ऊपर से हमें ऑर्डर आएगा किसी काम के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का योगदान रहेगा वह तुलनीय योगदान रहेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरीश जी ने जो ये बीड़ा उठाया है इसमें हम लोग 100% सफल होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम हम लोग जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद। एकदम सही सर। आगे गुप्ता जी सर। सबसे पहले तो धन्यवाद सभी को, सुशील जी, हरित जी और मंच पर आसीन सभी लोग। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि यंग जनरेशन क्या है, तो बहुत पुरानी बात है, तो मैं तो जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा कि यंग जनरेशन तभी तक है जब तक आप कॉलेज में हैं। जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो नाउ यू आर एन ओल्ड जनरेशन। तो स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, हमारे को कहानियां सुनाई जाती थी। वो कहानियां हमें आज भी याद है। और किसी भी संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी विचारधारा, और उस विचारधारा को फैलाना। उसके फैलाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप यंग जो जनरेशन तक है उस विचारधारा को लेकर के जाएं। क्योंकि जैसे ही आप ओल्ड जनरेशन में एंटर करते हैं तो आपके बायसेस डेवलप हो जाते हैं। कई बार कोई आदमी आपसे बात कह दे रहे हैं, आप सुनते ही नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या सुन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और वो यंग जनरेशन के लिए अच्छा है। हम लोग बीइंग ब्लेस्ड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमें सब लोग एनकरेज करते हैं, चाहे RWA हो, सोसाइटी हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो। तो जो यंग जनरेशन है, हम उस विचारधारा को वहां तक पहुंचा सकें। अगर आज कोई 5 साल, 7 साल, 10 साल का बच्चा है तो उसको भी ये हिंदू महासंघ का नाम पता होना चाहिए। ये हम लोगों का प्रयास है। I would like to come to a few of you and then I would really like to open the stage a bit, you know, please, आप लोग बड़ी दूर से लोग हैं, धीरज भाई हमारे जयपुर से स्पेशली आए हैं, तो we would like you to also say a few words. Myself, I am a chartered accountant. I am an economics graduate and then I've done masters in finance from the institute. I've been a banker for 20-25 years and then I moved on and came in touch with Bhaji. Sanatan Dharma, I think to my understanding is righteous living, moralistic living.
what we find in society today, and I heard some of you mention in terms of the new generation and what's happening. And all of us individually have our views. You know, this is the right way, this is the wrong way. But collectively coming together and making it a direction that can be pursued for society. I think for me, that is one objective that all of us with your inputs we can pursue. I haven't, and I got introduced to some of you for the first time today. I look forward to working with your thoughts and with your intellect and taking this vision forward. Thank you so much. हेमंत जी कहाँ बैठे हैं? मेरे को बस आप नमस्कार, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है और मैं जयपुर से आया हूँ। अपना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल अलग है, और जब मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊँगा तो कईयों को विश्वास नहीं हुआ कि इस गैदरिंग में मैं भी प्रेजेंट हूँ। बट थैंक्स टू हरित फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दैट मैं बायोलॉजिकल साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आई डिड माय बैचलर्स, मास्टर्स, PhD then postdoc from outside India, then came back to India in 2011 and then continuing promoting science and education all over India and all over the world. तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जब मेरे को पहली बार ने बताया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, नेशनल वो उपाध्यक्ष है हिंदू विश्व हिंदू महासंघ के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अगर आप कुछ नया काम करते हो तो मुझको जरूर उसमें इनवाइट कीजिएगा कि अगर मैं अपने कुछ विचार रखता हूँ। तो आज मैं उसी विचार को आपके सामने रखूँगा कि आज का दिन ये केवल मैंने कुछ हिंदी में लिखा है, मैं अभी इतना बोला नहीं हूँ कि भाई साइंटिफिक लेक्चर्स मैंने दिए हैं, पर मैं कोशिश करूँगा, कुछ त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि आज का दिन केवल एक प्रकोष्ठ की स्थापना का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार मंच की शुरुआत है जो आने वाले समय में समाज को नई दिशा दे सकता है। मैं एक वैज्ञानिक और वैश्विक शिक्षक के रूप में पिछले 2 दशकों से अनेक देशों के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के साथ कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने एक बात स्पष्ट रूप से अनुभव की है कि दुनिया आज भारत की ओर केवल उसकी अर्थव्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों के कारण भी देख रही है। अब ये प्रश्न ये है कि क्या हम उस ज्ञान को संगठित, आधुनिक और प्रभावी रूप से समाज और विश्व तक पहुंचा पा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ये इंटेलेक्चुअल सेल्फ। मेरा ये मानना ये भी है कि ये केवल चर्चा का मंच नहीं होना चाहिए, बल्कि विचार, शोध, नेतृत्व और समाज सेवा का राष्ट्रीय केंद्र बनना चाहिए। मैं इस दिशा में अपने 5 सुझाव आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव है ज्ञान का सृजन। हमारे पास बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम आधुनिक शोध करें, पुस्तकों, शोध पत्रों और नीति आधारित दस्तावेजों का निर्माण करें। जब हमारे विचार शोध और प्रमाण पत्र पर आधारित होंगे, तभी वो व्यापक समाज और प्रभाव छोड़ेंगे। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आई एम अ साइंटिस्ट एंड वी ऑलवेज बिलीव इन रिजल्ट्स, कि अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है तो उसे बिलीव करते हैं। दूसरा मेरा विचार है युवाओं को जोड़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही हम संगठन को आगे ले जाएंगे। तीसरा मेरा विचार है डिजिटल भारत और वैश्विक पहुंच। आज विचार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। हम पॉडकास्ट, वेबिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी और बहुभाषी ज्ञान सामग्री तैयार करनी चाहिए। यदि हम डिजिटल रूप में सशक्त होंगे तो हमारी पहुंच लाखों लोगों तक पहुंचेगी। चौथा मेरा विचार है समाज सेवा के माध्यम से विश्वास निर्माण। ज्ञान तभी सार्थक है जब तक उसका लाभ समाज को मिले। शिक्षा, कौशल विकास, वैज्ञानिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं और व्यक्तित्व निर्माण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय योगदान देकर हम समाज का विश्वास जीत सकते हैं। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। पांचवा, और ये आखिरी नहीं है, और भी विचार हो सकते हैं। आज विश्व भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद, सनातन ज्ञान में रुचि रखता है। हमें दुनिया के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और भारतीय प्रवासी समाज के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे भारत का ज्ञान वैश्विक मंच तक पहुंचे। सो मित्रों, किसी भी संगठन का विस्तार केवल सदस्य संख्या बढ़ाने से नहीं होता है,
उसका विस्तार तभी होता है जब लोग उसके साथ कार्यों पर विश्वास करते हैं। यदि ये इंटेलेक्चुअल सेल उत्कर्ष शोध करेगा, यदि ये युवाओं का नेतृत्व करेगा, यदि ये समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा और यदि ये ज्ञान को सेवा से जोड़ेगा, तो आने वाले वर्षों में लोग स्वयं इस अभियान का हिस्सा बनना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आइए हम सब मिलकर ऐसी बौद्धिक विचार मंच को तैयार करें जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के साथ जोड़े और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय हिंद। बहुत ही प्रेरणादायक। इधर हमारे कुछ फीमेल मेंबर्स बैठे, सुनीता मैडम नाम। मैं सब लोगों का यहाँ धन्यवाद करती हूँ कि सारे लोग एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ अच्छा करने के लिए समाज में हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें आप सब मतलब क्या करना है और कैसे करना है हमें ये डिसाइड करना होगा। क्या करना है ये भी शायद हम जितने बैठे सबको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, क्या क्या देखते हैं जो लगता है इरिटेट करता है कि यार ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन उसे कैसे करें, कई बार सोचते हैं कि चलो इसको सॉल्व करें, हमें लगता है हम अकेले कैसे करेंगे, अकेले करना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट कर सकती है पर गवर्नमेंट तक बात पहुँचाना भी मुश्किल है। तो इस सब के लिए मेरे को लगता है कि ये सारा मंच हमें सपोर्ट करेगा कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स, अब हम आगे जब भी हो सकता है कोई ग्रुप बनाएंगे, हम लोग एक ग्रुप बना के हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और डालेंगे और उनको एग्जीक्यूशन सॉल्व करने के लिए कैसे करना है वो भी डालेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस मंच से, चूंकि सारे लोग वेल क्वालिफाइड भी हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन से हैं और वेल डूडू भी हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सब एक अच्छा मंच तैयार करके उन सबको प्रॉब्लम्स को जो अब तक हम सोचते आए कि इनको करना चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए, उन्हें हम ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। सो सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सीए संगीता परमार। अभी ज़्यादा ग्लोरीफाइड बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मैंने सीए की और साथ में फैमिली के साथ स्ट्रगल की। मैं अभी सीए संजीव गुप्ता सर ने जो मुद्दा उठाया, जो बात उठाई कि हमें अपनी यंग जनरेशन को प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी पैदा करें, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा भी यही विचार है। पर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि हम आज की जनरेशन चाहती है हम एक ही बच्चा करें, दो करें, दो से एक से हम ये है कि एक भी ना करें। देखिए, बहुत लंबा संघर्ष करके भारत में महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली है और वो अपने पर काम कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं। लेकिन इसके साथ जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो इंडिया की पहचान है, परिवार, जॉइंट फैमिली, वो कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है, छूटती जा रही है। मतलब तरक्की की हमें कीमत चुकानी पड़ रही है अपने परिवार को सिंगल फैमिली रहेगी, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से हम एकल फैमिली सिस्टम पे आ गए हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आई एम नॉट वेल टू डू सीए बिकॉज मैं कहीं ना कहीं फंसती रह गई कि मैं मेरे बच्चों को संस्कार दूं या अपना करियर बनाऊं, अप एंड डाउन। कभी करियर पे फोकस तो देखा फैमिली, बच्चे पीछे छूट रहे हैं, उनको कुछ नहीं आ रहा, उनको भी तो सिखाना है, मेरे को ही ट्रांसफर करना है कि मेरा धर्म क्या कहता है, मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है। और जब फैमिली को देखा तो करियर पीछे छूटता चला गया। तो ये कोर मूल्स का कारण ये है और इसका सॉल्यूशन भी मैंने कुछ सोचा हुआ तो है, बट अकेले लेवल पे मैं इसको कर नहीं पा रही थी। तो अभी जाकर पूछे कि भाई आपकी बहू है, आपके बेटा दोनों काम कर रहे हैं, आप अपने पोते को क्यों नहीं संभालते हो? तो उनका अपना रीजन है कि भाई हम करें, अपना जिंदगी इनको दें, बाद में ये हमें घर से निकाल देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब
आप इसको नकार नहीं सकते कि आजकल के बच्चे माँ बाप को एज अ यूज करते हैं कि जब तक हमें जरूरत है हम उनको रखेंगे, उसके बाद हम नहीं जानते आप कौन है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे परवरिश अच्छे से करें पर वो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नेचर। तो ये सारी समस्याओं को ओके ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपने ये जो विचार प्रवाह चल रहा था और मुझे पता है कि बहुत सारे आपको थोड़ा सा परिचय देने के लिए ये सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। इसमें 80% से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं, यहाँ पे बैंकर्स भी हैं, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से जो बुद्धिजीवी आए हुए हैं। और ये अभी तक जो कार्यक्रम का प्रवाह रहा है उसमें सभी ने एक तरह से कमिटमेंट किया है, वादा किया है, कसम ले रहे हैं कि हमें इसको किस तरह से बड़ा बनाना है, इसको किस तरीके से हमें राष्ट्रव्यापी मिशन बनाना है। तो उस दिशा में मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ कि आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें और अपने शुभ विचार। ओम तत्पदं दक्षिणं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। काले करालबदनां घोरां केशिं दिगम्बरां देवी कामाक्षी रुद्रां देहि मे सर्वसिद्धिदाम्। आज विश्व हिंदू महासंघ के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के गठन के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों से पधारे बुद्धिजीवी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैज्ञानिक या अनुबंधों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके बीच में इस अवसर पर उपस्थित हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ का गठन ही जो है धर्म, संस्कृति और संस्कार के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए हुआ है। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी हिंदू हितों का हनन हो या हिंदू मूर्तियों पर कहीं कुठाराघात हो, उसके विरोध में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना, उसका प्रतिकार करना, ये विश्व हिंदू महासंघ का लक्ष्य है। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक जो विश्व हिंदू महासंघ का गठन जो है लगभग 14 राज्यों में तो हो चुका है। और आज बहुत ही विशेष अवसर है कि विश्व हिंदू महासंघ का जो है हमारे जो है विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरि जी के द्वारा एक इंटेलेक्चुअल प्रकोष्ठ का जो है गठन किया गया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको जो है विश्व हिंदू महासंघ से जोड़ा है। निश्चित रूप से उनके सहयोग और उनके मार्गदर्शन में ये विश्व हिंदू महासंघ जो है उत्तरोत्तर जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जब किसी संस्था के साथ बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसका जो भविष्य जो है वो उज्जवल होता है। और इसी कामना के साथ मैं आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका विश्व हिंदू महासंघ के बौद्धिक प्रकोष्ठ में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपके माध्यम से ये संदेश जो है जन जन तक पहुँचेगा कि विश्व हिंदू महासंघ जो है निरंतर प्रयास कर रहा है कि अपने धर्म, संस्कृति और संरक्षण के लिए वो विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ रहा है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्व हिंदू महासंघ का गठन ये 1984 में नेपाल के एक जो है हिंदू महासभा के अंदर हुआ था। उसके बाद ये उसकी जो भारत इकाई के लिए जो दायित्व है वो मुझे सौंपा गया और मेरे जितने भी सहयोगी हैं, जैसे हमारे जो विश्व हिंदू महासंघ के महामंत्री श्री
हमारे जो प्रभाष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हर जी के विशेष प्रयास से आज जो है विश्व हिंदू महासंघ के जो इंटेलेक्चुअल सेल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसका गठन हुआ है। और इस विश्व हिंदू महासंघ के बौद्धिक इस प्रकोष्ठ के द्वारा निरंतर जो है ये प्रयास किया जाएगा किस तरीके से भारतीय संस्कृति और संरक्षण हो और संवर्धन हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उसका भी जो गठन किया जाना चाहिए और इससे जो अनेकों क्षेत्र में जो कार्य करने हुए बुद्धिजीवी हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से विश्व हिंदू महासंघ अपने लक्ष्यों को निश्चित ही रूप से पूरा करने में सहायक होगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो इंटेलेक्चुअल वो ज़्यादा सनातन के बारे में बात करेंगे, इस वर्ग के बारे में ज़्यादातर इसमें देखिए, वैसे आज आपके सम्मुख जो इतने लोग हैं उपस्थित हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं वो सनातन संस्कृति और धर्म के प्रति जो जागरूक नहीं है या उनकी इस प्रकार के कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते हैं। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज इतनी संख्या के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं तो निश्चित ही ये प्रमाणित करता है कि उनके मन में भी धर्म, संस्कृति और संस्कार के संरक्षण और संवर्धन के जो है मन में जो है बात रहती है। सर, राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि जो भी कलश स्थापना नहीं की गई थी, काली मूर्ति का इस्तेमाल हुआ था, जबकि संगमरमर की मूर्ति इस्तेमाल होती है। देखिए, भगवान श्री राम का वर्ण स्वयं ही श्याम था। वो आज वो लोग जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और राम को काल्पनिक कहा, आज वो राम मंदिर के विषय में जो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, ये वाकई जो बड़ा हास्यास्पद है। चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी कहा जा रहा है कि साधु संत का इस्तीफा मंजूर किया जाए, समाजवादी पार्टी बदनाम कर रही है। देखिए, साधु संत आप जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में संतों का जो है बहुत योगदान रहा है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। और आज भी जो साधु संतों के मन में जो है ये बात आ रही है कि ये मंदिर का अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो उससे जो संपूर्ण हिंदू समाज बहुत आहत है और एक उनकी आस्था पर जो है चोट पहुँची। पहले मेरा ही नाम ले लिया था विजय दा। इसके बाद संजय अग्रवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। कमल सर, कुमार कौशिक, कमल किशोर कौशिक जी, डॉक्टर धीरज शर्मा, सुनीता अग्रवाल मैम सर, हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर हेमंत अग्रवाल, अच्छा लगा सभी लोग श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी, सुनीता मैडम, राधेश्याम बंसल जी, रविंद्र कुमार जी,
आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग से जो है विश्व हिंदू महासंघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आप समय अपने में महत्वपूर्ण समय निकाल कर आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए आशीर्वाद। ताली बजाते रहिए प्लीज। आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन, विश्व हिंदू महासंघ में आपका स्वागत है। आइए ऊपर आइए। हो गया मैडम। थैंक यू। थोड़ा और इधर करो। अच्छा, बड़ी जरा पहुँचता हूँ। थोड़ा इधर करें ताकि खड़े हो जाए। समय निकाला इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका विश्व हिंदू महासंघ में स्वागत है। हरीश कुमार छाबड़ा जी। स्वागत है। अमित चौबाला जी। श्री पंकज बंसल। मानसू अग्रवाल। स्वागत है आपका। पंकज सुनील कुमार। सुनील कुमार स्वागत है आपका। श्री शैलेश दयाल जी। हार्दिक अभिनंदन। सर इधर सर सुशील कुमार सोमाल। कौशल किशोर कौशिक सर। उसके बाद अदर कुमार। अदर कुमार धीरज गोयल जी। मिस्टर मनीष चतुर्वेदी जी। मनीष चतुर्वेदी जी आए नहीं है। दिलीप गुप्ता जी भी नहीं आए। संजीव रस्तोगी जी। कृपा शंकर शुक्ला जी।
उसके बाद गौरव कुमार जी, कमल किशोर गौरव कुमार, पवन लोहिया जी, राजेश गुप्ता जी, गौरव कुमार, कुछ नामों में कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, मृत्युंजय ऑनलाइन ज्वाइन किया है उन्होंने, नहीं पाए। संदीप जैन जी, त्रिलोक कुमार शर्मा जी ने ज्वाइन नहीं कर पाया आज। अनुज कुमार गहलोत, सर अनुज कुमार गहलोत, गौरव शुक्ला जी, वो है नहीं। मनोज जैन जी, निकल गए। गौरव अग्रवाल जी, उसके बाद अमित जायसवाल, संजीव रस्तोगी, सर इधर निश्चित रूप से आपके सहयोग का कांग्रेस का जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। स्वागत है। अनुज अरोड़ा, जयेंद्र कुमार तिवारी जी हमारे CIRC के मौजूदा मेंबर हैं। जयेंद्र कुमार तिवारी जी, मोहित गोयल जी, मोहित गोयल शायद नहीं है। नवनीत कुमार जी, नवनीत कुमार जी साइड में रखते जाना, क्या नहीं मिल रहे हैं और नाम आ रहा है। श्री प्रदीप गोयल जी नहीं है, नहीं है उनकी साइड में। श्री जयप्रकाश जी, प्रियंका अग्रवाल
शायद नहीं आ पाए, प्रियंका अग्रवाल भी नहीं आ पाए, सौरभ सेठी जी, सौरभ सेठी, पहले सौरभ सेठी हैं, फिर स्वागत के लिए आप तालियां बजाते रहिए। बलराम सिंह सैनी जी के बाद अजय गोयल जी, फिर नितिन बंसल जी, अजय गोयल नहीं है, नितिन बंसल जी, नीतीश बंसल जी, सॉरी नीतीश नहीं है, विक्रांत सिंह जी और विष्णु सिंह जी। कार्यकर्ता कोष और कार्यक्रम ये सब चीजें जो उसके बाद मनदीप सिंह बामरा जी, मनदीप सिंह बामरा भी नहीं है, अजय शर्मा जी, अभिषेक कुमार सिंह जी नहीं आ पाए, गौरव मित्तल जी, दीपक पवार जी, संजय कुमार जायसवाल जी, संजय कुमार जायसवाल कंप्लीट कर दिया। सीमा गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी नहीं आ पाए, योगेश बिरला जी, अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक जैन जी, अभिषेक जैन के बाद राकेश सिंघल, सुमित शर्मा, सुमित आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका विश्व निवास। राकेश सिंघल जी, कपिल बजाज, कपिल रंकुर शर्मा जी, के बाद है अंकुर शर्मा, संगीता जी, सर अशोक गोयल जी,
भाई हैं राहुल जी हर्ष जी चलो अभय वोरा जी शायद आ रहे हैं निशांत शंकर जी पूजा वाशिंग जी मैं इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ नाम हमारे मिसमैच हो रहे हैं और कुछ टीम को भी थोड़ा दिक्कत आ गई है, तो हम मतलब वी विल इंश्योर कि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो सके अकॉर्डिंगली। I am a chartered accountant by profession, and I've worked in the Big Four for almost 15 years. My area of specialization is taxation, international taxation, advisory, compliance, and litigation. And I am getting a little nostalgic also because 10-15 years back, when Harit Agarwal stood for the NIRC elections, at that point of time, Harit and Sushil were both with me. And it's very nice how they have, blossomed their careers. The nice thing about the intellectual cell is that, the core objectives, and because most of us are chartered accountants, the memorandum of association is not restricted to just few clauses, it's much wider. And for the last few years, I feel that we as Hindus, we have been less appreciative about our own things. But we acknowledge ourselves only when outsiders teach us what is already ours. When we talk about Dhyan Mudra, so Dhyan Mudra has, our Rishi Munis have been doing it for innumerable years. But we don't call it Dhyan Mudra, but we recognize it when we call it meditation. Likewise, yoga जो है, Ayurveda जो है, these are some of the areas which, when foreigners come out with fancy terms like power yoga, हमको वो समझ में आती है. But then we realize कि हमारे ऋषि मुनि भी ये करते थे पहले और ये सब. So one of the expectations that I would have is that we are more, there is more dissemination of information. We are appreciative of our own things. We don't call Ramayana and Mahabharata as mythologies. That's history. We still address them as mythologies. And yes, more orientation towards Rigved, Samved, Yajurved, Atharved, so that we don't have to start from scratch. We don't want others to acknowledge it. We build from where we had ended at one point of time. So that is one expectation. Thank you very much. तो हमारे बीच में CIRC के हमारे सिटिंग काउंसिल मेंबर भी हैं और साथ में ये अभी कोषाध्यक्ष हैं आपका सेक्रेटरी सॉरी थोड़ा सा तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेमादरणीय श्रद्धेय श्रीमान सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ, हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ हरित अग्रवाल जी, सुशील कौशिक जी और इस हॉल में सभी सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डिफरेंट फैकल्टी के लोग। देखिए, मेरा मानना है अगर मेरे पॉकेट में एक सिक्का है और अगर मैं मानूं कि हॉल में लगभग 50 लोग हैं और मैं उस सिक्के को कहूं एक्सचेंज करूंगा, एक सिक्का मैंने मान जी से दिया, मान जी ने आपके बाजू में दिया, इस पूरे हॉल में वो सिक्का घूम जाएगा
और अंततोगत्वा जेके तिवारी के पॉकेट में एक सिक्का मिलेगा। लेकिन अगर इस हॉल में 50 इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं और 50 इंटेलेक्चुअल्स ने अगर एक आइडियाज दिया, तो यहाँ हर कोई 50 व्यक्ति बैठा हुआ 50 आइडियाज लेके जाएगा। तो हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं हरित अग्रवाल जी का, सुशील कौशिक जी का और विश्व हिंदू महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कि आपने एक ऐसा मंच दिया। मैं भी एक दो पॉइंट इस पे रखना, चूंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं और इंटेलेक्चुअल के लिए कोई पद और कोई नॉलेज की, सिर्फ ज्ञान की जरूरी नहीं होती है। कई बार बहुत कम पढ़े लिखों के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। मैं दो आइडिया मान जी आपके माध्यम से मैं रखना चाहूंगा। देखिए, इस पूरे विश्व में अगर कोई लोग जो राज्य करता है, जिसके पास है, वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक जिसके पास मसल पावर है, दूसरा जिसके पास मनी पावर है, और तीसरा वो लोग हैं जिनके पास आइडियाज है। हम जितने लोग हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, तो देश में अंततोगत्वा राज वही करता है जिसके पास आइडियाज है। आइडियाज हमारे पास बहुत हैं, बस उस आइडिया को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसा मंच मिला है और मुझे उम्मीद है हर व्यक्ति एक एक आइडिया लेकर आया होगा और बहुत चंद शब्दों में एक एक आइडिया जरूर एटलीस्ट बोले। एंड सेकेंडली, एक में अभी इसमें काम भी कर रहा हूं, कंजर्वेटिज्म नेशनलिज्म। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडा फहरा देने से, मात्र वंदे मातरम बोल देने से हम राष्ट्रवादी नहीं हो जाए। अगर राष्ट्रवाद डेवलप करना है तो चाइना की तरह में बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ये काम सोचना पड़ेगा कि मेरे द्वारा ये काम को हमारे देश के लिए क्या हो सकता है। जिस दिन हम इसको अपने काम से जोड़ लेंगे, रचनात्मक राष्ट्रवाद की तरफ काम करने लगेंगे, देश तरक्की जरूर करेगा। सेकेंडली, सर अभी चर्चा चल रही थी कि समाज को जोड़ना है तो अलग अलग विभिन्न लोगों को, वर्गों को साथ में आना है। सर इसमें एक मेरी अलग व्यू है। सर समाज में जाति प्रथा को तो मैं अगेंस्ट मानता हूं। हमेशा कोई गरीब या अमीर या अगड़ा या पिछड़ा कोई जाति नहीं होती, वो हमेशा से कोई परिवार होता है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म और किसी जाति किसी मजहब से हो, अगर दिल्ली एनसीआर में रहता है तो बहुत ऊपर है। वो चाहे किसी वर्ग विशेषताएं क्यों, अगर गांव में रहता है तो बहुत लोग बहुत गरीब है। तो हमें जरूरी है पहचानने की कि वो परिवार के आधार पे, चाहे वो एक एग्जांपल दे रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, परिवार के आधार पर होना चाहिए। वो परिवार कोई भी हो सकता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे मजहब हैं, ऐसे प्रांत के लोग हैं जिन्हें ड्यूअल आइडेंटिटी की बेनिफिट मिल रही है। तो हमें ये विंग इंटेलेक्चुअल सोचने की जरूरी है कि जो ड्यूअल आइडेंटिटी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की फंड है, वो किसी खास वर्ग विशेष के लोगों को मिल रहा है, वो सबको मिले। और जब हम बात करते हैं देश हित की, ऊपर बढ़ने की, तो हमें कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो जब सबका साथ सबका विश्वास तुम तभी ले पाएंगे जो हर घर की, हर चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो मैं पूरा आग्रह करूंगा आपसे, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी, एक एक लाइन में कम से कम एक आइडिया जरूर लेके जाएं। जेके तिवारी आज जानना चाहता है कि 50 आइडियाज हम जरूर लेके जाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पनी प्राणी को बयान देता हूँ, हरीश अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय। ये हमारे जयंत तिवारी जी अपने चिर परिचित अंदाज में, मैं धीरज भाई आपके पास आना चाहता हूँ। First of all, thanks to you, Sushil Bhai Sahab, Venkatesha sir, for inviting all of us and giving this platform to interact with such a great intellectual peoples. मैं डॉक्टर धीरज शर्मा, बाई क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बाई प्रोफेशन मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ संकल्प ग्रुप एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। संकल्प ग्रुप 1993 से कंसल्टेंसी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पैकिंग एंड पैकेजिंग में काम करता है। आज भाई साहब का आदेश आया और मैं यहाँ आया, तो मैं एक छोटी सी चीज, मुझे सब लोगों से मिल करके, कुछ पुराने परिचित थे, कुछ नए परिचित मिले और कुछ महेंद्र जी का आशीर्वाद हमें मिला। तो एक विता जरूर याद आता है कि जब रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं और हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि हर तरफ राक्षसों का राज है, उसमें भी एक घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। और वहां जाते हैं तो विभीषण जी से परिचय होता है। विभीषण जी उस समय जब हनुमान जी से परिचय होने के बाद कहते हैं कि अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। तो ये पूज्य महेंद्र जी की कृपा है, आशीर्वाद है हम सब के ऊपर कि हम इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिलने का हमें एक आज सौभाग्य मिला, एक अवसर मिला। शुरुआती जब सबसे पहला आपने परिचय कराया, संजीव सर कह रहे थे कि इंटेलेक्चुअल्स होना बंद हो गए हैं।
सिर्फ पैदा ही होना बंद नहीं हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को गर्वित हिंदू कहना भी बंद हो गए हैं। एक समय था जब हम बात करते थे आर्यभट्ट, वराहमिहि, भास्कराचार्य, उसके बाद हम बात करें विष्णुगुप्त चाणक्य, इस तरीके की लेगेसी को हम लेकर के आए। लेकिन करीब 100 साल का एक दौर अंग्रेजों के शासनकाल का प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा रहा कि धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल्स हुए वो ये कहने लगे साहब ये धर्म की अफीम अनपढ़ों को चटाई जाती है। तो यहाँ विश्व हिंदू महासंघ की इंटेलेक्चुअल सेल इसी बात के लिए है कि जो कहते हैं कि धर्म की अफीम अनपढ़ों को चटाई जाती है, तो ना धर्म कोई अफीम है और ना यहाँ बैठने वाले अनपढ़ हैं जो धर्म के लिए आए हैं। हमारे लोग अक्सर मैम भी कह रही थी कि नेक्स्ट जनरेशन है, धीरे धीरे वह टूट रही है संस्कारों से। बस हम सबकी चिंता है कि परिवार टूट रहे हैं, संस्कार टूट रहे हैं। कारण कि हमने रोल मॉडल बनाया उसको जो अच्छा कमा रहा है। अब महाराज जी, महंत जी भगवा धारण करके आते हैं, हमें समझाते हैं, जिनका जुड़ाव है वह समझ लेंगे, लेकिन जो बच्चा सिर्फ स्कूल लाइफ में मार्क्स के पीछे भागा, उसके बाद पैकेज के पीछे भागा और उसके बाद प्रमोशन के पीछे भागा, उसे लगता है महाराज जी का तो काम है धर्म की बात करना, मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन वह बच्चा जिस जॉब में है, नौकरी में है, वह नर्सिंग में है, डॉक्टर है, तो अपने सीनियर डॉक्टर को देखता है। अगर वो रिसर्च स्कॉलर है तो किसी साइंटिस्ट को या प्रोफेसर को देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर सीए लोगों को देखता है, और वह सीनियर उसे कहते हैं नहीं धर्म की आवश्यकता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जड़ों को सींचना हमारी आवश्यकता है, तो जल्दी असर उस पर होने वाला है। तो हम कोशिश यही करें। और श्रीमद् भागवत गीता में 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि मत कर्म कृण्वत परमो मत वत् संग वर्जित है निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवे, कि the one who is engaged in his duties with purity, the one who is free from contamination of all the previous deeds, and the one who is unbiased to everybody, he or she surely comes to me। तो मैं समझता हूँ धर्म भी यही कहता है कि हम पवित्रता के साथ अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, जिम्मेदारियां निभाएं। मैं एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुशील जी भाई साहब, हरित भैया को, कि आपने एक प्रयास किया, आपका भागीरथी प्रयास है कि इन लोगों को जोड़ा। एक मैं यहाँ से ये भी कहूंगा, आज का कार्यक्रम होगा उसके बाद सब चले जाएंगे, कोशिश करें अपने अपने एरिया में पढ़े लिखे लोगों को जोड़े और धर्म, सनातन और इनसे जुड़े हुए प्रतीकों को अपनाने में शर्म ना महसूस करें। मैं सीए हूँ, मैंने IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर और 7 IIT से भी FDPs किए हैं, बट मुझे मेरी शिखा, मेरे तिलक और मेरे उपनयन पे गर्व महसूस होता है, शर्म महसूस नहीं होती कि मैं सीए हो गया। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको कि हम विश्व हिंदू महासंघ की इंटेलेक्चुअल सेल का अगला कोई कार्यक्रम जयपुर में आप करें। मैं स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, समस्त व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायित्व लेता हूँ, जल्दी आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम करें। धन्यवाद। हमारे कुछ ऑनलाइन मित्र भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ विचार भेजे हैं, मतलब वो भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आई विल जस्ट रीड इट थ्रू। हमारे एक पृथ्वीराज जी हैं जो 62 डिग्रीज होल्ड करते हैं, हमारे पास नंबर 2 भी है वैसे 35। अंकुरित भाई कितनी 28 डिग्री हमारे अंकुरित भाई के पास भी है, लेकिन ये मतलब ही क्लेम्स टू बी द हाईएस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहते हैं कि वी मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रू इंटेलेक्ट डज नॉट सेपरेट अस फ्रॉम आवर रूट्स, इट एंकर्स अस डीपर इनटू आवर हेरिटेज। We are not here today to invent a new ideology. It's nothing new. We are here to dust off, reclaim and champion the timeless scientific truth of Sanatana Dharma. Our mission is to translate the profound philosophy of our ancient text into actionable solutions for the modern world. Let our discourse always be guided by truth, driven by logic and rooted entirely in the welfare of the nation. दूसरे विचार है कि as we inaugurate this cell today, let this meeting be the precise moment, something that Dheeraj ji also mentioned, let this meeting be the precise moment where individual brilliance transforms into collective national strength. Let us pledge to make our intellect the greatest servant of our culture and our country. Go forth from this room not just as a thinker, but as the torchbearer of the grand cultural renaissance. On that thought, अजय भाई बैठे हैं बगल में। धन्यवाद सुशील भैया। सबसे पहले परम आदरणीय महंत जी को बहुत बहुत नमस्कार, और सुशील भैया को बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे इस एक बड़ी नोबल सी मुहिम के साथ जोड़ा। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिसेंटली मैं लॉ ग्रेजुएट भी हुआ हूँ। मेरा बैकग्राउंड इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स का ही है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन डिस्प्यूट्स और उसकी रिलेटेड एडवाइजरीज में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 11 साल से। तो मैं बस छोटा सा एक इस पूरे जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें एक कंट्रीब्यूशन अपना अगर दूं, और जिसके बारे में मैं थोड़ा कंसर्न भी हूँ। मेरी उम्र 32 साल है
और मैं जो रियलाइज कर पाया, बिकॉज हमारा परिवार इस विचारधारा से जुड़ा रहा है, मैं इसी विचारधारा से बिलोंग करता हूँ, और साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ हम एक अपना जो प्रोफेशनल काम है वो भी कर रहे हैं। जो मुझे सबसे बड़ा एक पिछले कुछ समय में जिस उम्र से मैं इस चीज के बारे में सजग हुआ वो ये है कि युवाओं का जुड़ाव इस विचारधारा के साथ, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की हमारे बताने में कमी रह गई, उस वजह से काफी ज्यादा डिटैचमेंट होता जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इस बात को कितना आगे बढ़ा सके, कितना मैं आप सब लोगों को इस बारे में समझा सकूं कि युवाओं में इस विचारधारा को लेके साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से बहुत ज्यादा एक तरह से अलगाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से दूसरी जो विचारधारा है उन सब ने उसको एनक्रोच कर लिया है। तो इस पूरी मुहिम में हम जहां तक भी इस पूरी मुहिम को ले जाना चाहें, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की रखें और युवाओं के फोर फ्रंट पे रखें, ताकि वो इस विचार को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सके, और जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो पूरी की पूरी इस विचारधारा से जुड़ी हुई और अपने काम को करती है, और साइंटिफिक तरीके से, जैसा धीरज भाई साहब ने भी कहा कि सब लोगों को एक तरह से उसके अंदर बेइज्जती महसूस होती है या उस चीज को कैरी करने में वो लोग परेशान होते हैं, वो गैप जितना ज्यादा फुलफिल हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि विचारों की कहीं कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कहीं कमी नहीं है, बस उस सिनर्जी को और उस विचार को चैनलाइज करने की जरूरत है। तो बस मेरा छोटा सा यही एक सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। Like to open it. So anybody else now? I would not like to take name. Let's keep it open. जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ मित्रों ने हमारे बाद में ज्वाइन किया है, नवीन भाई, मनदीप भाई। आदरणीय बहन जी, my name is Ankush Srivastava and I am a friend of Harit and she. So I am here on their invitation. Rather than I am myself excited to be part of and do something. I just want to tell about myself. I am a chartered accountant. I am a law graduate. I am a social auditor also. So I have done around mostly I am into forensic audits, and I have completed around 61 investigation in India and abroad. So if you talk about first of things as a chartered accountant, धर्म जो पुराणों से लेके which has come to our, मतलब जब मैंने लॉ भी की थी when I found it, धर्म, सारे लॉ जो शुरू होते हैं वो धर्म से शुरू होते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म के बाद द सेकंड थिंग इज ट्रूथ। सत्य क्या है? तो इंटीग्रिटी के ऊपर एक चीजें आती है, और इन सबको पाने के लिए आपको क्या चाहिए? विद्या। सो अगर हम हजारों साल पहले जाएं तो हमारे सनातन में लोग, इफ यू टॉक अबाउट सनातन मोस्ट प्रोबब्ली आपको लगेगा कि केवल एक धर्म की बात हो रही है। तो धर्म नहीं है सनातन। सनातन एक रहने की, एक आपकी जीवन जीने की पद्धति है जिसमें लोगों ने समाज के लिए अपने राज्य को त्याग किया है। अगर आप रामचंद्र जी की एंसेस्टर उसमें जाएंगे तो मनु जी के से जो निकली है और 75 जनरेशन तक चला है रामचंद्र जी का, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक किसी के कहने पे सीता मैया का त्याग कर दिया था। वो धर्म की बात है, सत्य की बात है। तो अगर हम उसी पे जाएं, विद्या पे जाएं, तो पुराने गुरुकुल के टाइम में गुरुकुल के अंदर 18 तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, जिसमें एटॉमिक साइंस भी होती थी, जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी भी होती थी, और हम सबसे आगे थे स्पेस टेक्नोलॉजी में। और उस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो आज जो विश्व का सबसे बड़ा रईस आदमी है, सब लोग जानते होंगे उसका नाम, उसने रॉकेट भेजे, सैटेलाइट भेजे। हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उन स्टार्टअप पे हेल्प कर सकते हैं जहां पे हम अपने आप की जीडीपी बढ़ा सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साइंस में अगर आप स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा पहले हमसे, अगर हमारी छोटी सी आप हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सूरज से और पृथ्वी की दूरी कितनी है, जो नासा ने अभी कुछ टाइम पहले नापी है तो 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है। और हमारे में क्या लिखा है? सुस्त सहस्त्र योजन पर भानु तियो लाए बदुरफुल जानू। तो युग सहस्त्र योजन पे, तो एक योजन मतलब 12.8 किलोमीटर। तो 12.8 किलोमीटर को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 मिलियन के करीब आता है। हमने बताया था, हमने हजारों साल पहले बताया था 9 ग्रह थे। हम लोगों ने, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, मैं साउथ में ऑडिट पे जाता हूँ, बहुत जगह ऑडिट पे जाता हूँ, सब जगह मंदिर है। तो हमने बताया कि ग्रहों की गति कैसे चलती है, कब जन्म होने से क्या होता है, ये इन लोगों को नहीं पता था। अंग्रेजों को तो
अभी 19th सेंचुरी में भी यही था कि ये पृथ्वी हमारी स्क्वायर है। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, किस विषय की बात करना चाहते हैं आप अगर रक्षा की बात करें, अभी हम स्पेस के बाद रक्षा की बात करते हैं, जो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावर, अभी जैन जी ने कहा कि सत्ता किसके पास होती है, 3 लोगों के पास होती है, एक बुद्धिजीवी, एक जिसके पास पैसे होते हैं, और एक तीसरे के पास जिससे मसल पावर होती है। तो हम उस वर्ष के थे जहां पे शास्त्रार्थ में करते थे। तो शास्त्रार्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं शास्त्रार्थ का मतलब क्या है, तो पहली शस्त्र लिखा है कि अगर अर्थ से बात ना हो तो शस्त्र से बात करिए, शस्त्र से बात कीजिए। तो उसका नाम शास्त्रार्थ था हिंदुस्तान में, और तभी हम लोग धनुष बाण लेके बात करते थे। आप रामायण में भी देखेंगे कि रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र से निवेदन किया कि भाई साहब आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए। जब नहीं माना तो जब धनुष बाण निकाला तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये करिए उपाय। तो हम उस देश के नागरिक हैं, हिंदू का धर्म ही जो है हिंदू कुश पर्वत से आया है। तो मैं कई बार पढ़ाई करता हूँ, देखता हूँ। दूसरी चीज आप देखेंगे, विश्व में सबसे पहले सर्जरी कहाँ हुई थी? सबसे पहले विश्व में सर्जरी, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त जी की पहली बार सर्जरी से निकले थे चंद्रगुप्त जी। और अगर आप पहली बार स्पेस का और इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो महाभारत में जाइए। महाभारत में कौन थे? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी को भगवान का दर्जा नहीं था, ही इज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट एट द टाइम। आप देखो ब्रह्मांड में भी देखते हैं, तो अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो वहां पे जो कॉस्मस है वो डमरू की तरह बजता है, टक 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 टक, तो डमरू की तरह उसकी आवाज आती है। और सबसे ज्यादा कॉस्मस की अगर साउंड होगी तो इको जो होती है, जो अभी नासा ने कहा इट इज द साउंड ऑफ सन। वो क्या है? वो साउंड ऑफ सन क्या है? वो ओम की नाद है। तो हम सब जगह आ गए। अब हमें इस सबको इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है? नालंदा और तक्षशिला की तरह हमें उसकी रचना करनी है। हमें कोई जाके कुछ नहीं करना है, हमें वही पुरानी चीज ढूंढना है। गुरुकुल बनाने हैं। इसको कहेंगे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय नहीं, तो भारतीय की जो प्रणाली है उसी को डिस्ट्रॉय किया। आने वाले लोगों ने करना है, इंडियन नॉलेज डिस्ट्रॉय किया, उसी को डिस्ट्रॉय किया। अगर आप देखेंगे मेरे पास, मतलब आई एम ऑल्सो फैकल्टी टू वेरियस इंस्टीट्यूशन, कई बार मिनिस्ट्री में भी जाता हूँ, कहीं जाता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट, हमको कुछ करना नहीं है, हमें चीजें देखनी है कि हम वहीं से ढूंढना है। अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें, सारी दवाइयाँ हैं जो अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत ज्ञान की लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू, लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम ओवर हियर, लेकिन वी कैन कंट्रीब्यूट, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी थ्रू दिस आइडियाज, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट दैट हाउ कैन ही पुट ए प्लेस इन दिस place. So thank you very much from my side. Okay, the lunch is waiting, but you would like to take a few closing remarks from any volunteer. Whatsoever you can have. Hello sir, I am Sanjay Jaiswal, managing partner Jaiswal Chawla and Company. महंत जी को मेरा प्रणाम। सुशील भाई ने जो सेक्रीफाइस किया है, जैसे ये रिजाइन फ्रॉम सिंगापुर कम इन इंडिया, ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे तिवारी जी ने बोला था, 3 चीजें हैं। सबसे बड़ा आप जो भी कर सकता है जिसका संगठन मजबूत हो। अगर संगठन मजबूत है तो वी कैन डू एवरीथिंग। मैं एक सिंपल आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक तो मैं सिंस क्वालिफाई मैंने प्रैक्टिस ही करी और कर ही रहा हूँ। आई हैव कंटिन्यूड पार्टनर राइट नाउ एंड 20-22 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं जितने लोग यहाँ पे आए, मैंने एक आइडिया मेरा है कि संकल्प भी लेना पड़ेगा ना। देखिए, वी आर द अराउंड द 48 ईयर, बच्चों को ना मंदिर ले जाना सिखाइए, तब सनातन कायम रहेगा। खाली लेक्चर देने से या मीटिंग करने से नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को कम से कम एक दिन मंदिर ले जाना पड़ेगा, तब जाके होगा। जैसे शंकर भाई साहब आजकल डालते हैं वेदांत की चीजें, बड़ी अच्छी मैं पढ़ता रहता हूँ। एक हमारे गुड़गांव में अजय जी हैं, वो भी यही करते हैं कि वेद की, चारों वेद की स्टडी कर रहे हैं। और कभी कभी सोसाइटी के बच्चों को बुला के वो बोलते भी हैं। वो कहते हैं कि दे आर द कमिंग जनरेशन गोइंग टू रूलिंग इन कंट्री। हम लोग तो क्या 10 साल 20 साल 25 साल मैक्सिमम, तो बेटर है कि यंग जनरेशन को मोटिवेट करें और यंग जनरेशन को हम आगे बढ़ाएं।
don't want to hold the position for older. न्यू यंग को हम मैक्सिमम पोजीशन यंगर को देना शुरू करें और उनको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो हमारा सनातन फिर कायम हो जाएगा और हम जो 100 साल पहले या 150 साल पहले खो दिए हैं हम उसको पुनः विस्थापित कर सकते हैं। और ये अवैधनाथ जी ने किया था। आई वॉज इन द 11th क्लास, तब योगी जी ने दीक्षा ली थी MP इंटर कॉलेज बलरामपुर हाल के अंदर। आई वॉज इन 11th क्लास में मॉनिटर था और वहाँ के प्रिंसिपल थे विभ्राट चंद्र कौशिक। He was the principal। तब उन्होंने बोला था that time he was just qualified MSc करके आए थे और गुरुजी ने इनको दीक्षा दी थी। हम लोग तो सारे क्लास के स्टूडेंट हम लोग अवेलेबल थे। तब उन्होंने बोला था कि संजय तुम लोग देखना ये कुछ ना कुछ करेंगे और बियॉन्ड द लिमिट करेंगे। हम तब उस समय 11th क्लास में 12th में जब मैं निकला उसके बाद ग्रेजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद दिल्ली आया। MP सिंह तोमर नाउ रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे क्लास टीचर थे। योगी जी के साथ आज भी उनका उठना बैठना सर था, उनसे मिलते हैं तो उन्होंने उसी समय बोला था तोमर साहब कि इनकी जो छवि है वो दिग्विजय नाथ की है। तुम लोग देखना हम रहे या नहीं रहे, तुम लोग देखना है कुछ अच्छा करेंगे। तो मेरा सारा एजुकेशन गोरखपुर से हुआ है। मैं मंदिर से बहुत क्लोज, मेरी फैमिली भी रही है, आज भी है। पापा जी जाते रहते हैं सब लोग। ऑलमोस्ट वी आर द अराउंडिंग द टेम्पल्स एंड थिंग्स। और मेरे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं योगी जी से जो कि गोरखपुर में है, जाना आना मंदिर के आसपास। तो वी वांट टू डू समथिंग की कंट्रीब्यूशन हमें करना है, लेकिन यंगर बच्चों को साथ लेके करना है, तभी हमारा संगठन मजबूत हो पाएगा कि हम 11th 12th क्लास के बच्चों को भी किसी किसी प्रोग्राम में बुलाएं। वेरी गुड। सो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक फोटो बुक भी ऑर्गेनाइज किया है जो गुरुजी के साथ उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ा एक आशीर्वाद है। तो जो वहाँ पे फोटो लेना चाहते हैं वी आर वाइंडिंग इट अप। मैं सिर्फ एक विचार के साथ वाइंड अप करना चाहता हूँ। संजीव जी का चुराया हुआ विचार है, संजीव जी से चुराया था मैंने कि ईदर वी ग्रो और वी श्रिंक और वी डाई इवन। सो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हमने इसको बिल्कुल खाली एजेंडा के साथ प्लान किया था कि हम इसमें कोई एमिनेंट स्पीकर्स नहीं बुलाएंगे, हम इसमें कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे कि आए और लोग ज्ञान देके चले जाएं, उस तरह के ना करके द ओनली एजेंडा वाज कि हम ही लोगों को आपस में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे कि सब अपने अपने विचार रख सकें। और यहाँ पे बहुत सारे विचार आए हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर हम एक्सपैंड नहीं करते हैं, अगर इस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर इस चीज़ को आगे अपने सर्कल में नहीं लेके जाते हैं, इस विचारधारा को, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है इंटेलेक्ट और सनातन का, अगर हम इसको आगे नहीं लेके जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ फिजल आउट कर जाती है। तो हमें इंश्योर करना है कि ये फिजल आउट ना करे, ये बल्कि स्ट्रेंथन हो, आगे और बढ़े। और ये सारी जिम्मेदारी इस फाउंडिंग टीम के कंधे पे रखी जाती है आज से। तो हमारी जो कार्यकारिणी है उनके आदेश से, गुरुजी के आदेश से, जब भी जिस भी तरह का अगर अपॉर्चुनिटी होगी, हम हमेशा एक वर्चुअल ऑप्शन भी ओपन रखते हैं क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं। कभी अगर टाइम नहीं होता है तो आप लोग जब भी हमारे इस तरह की कोई मीटिंग होती है उसको ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट इम्पैक्ट एम आई मेकिंग अराउंड मी। हरिम जी के प्रयास माध्यम से यह प्रयास हुआ कि विभिन्न लोगों के भौतिक बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ मंच पर लेकर आए। और अभी हमने कुछ लोगों के विचार सुने धर्म के बारे में। क्या है धर्म में धार्मिक धर्म, धर्म का अर्थ है धारण करना, ऐसे नियमों का धारण करना जिससे धर्मी प्राणी का कल्याण हो, उसका नाम धर्म है। सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन शब्द का जो अर्थ है वो है समय की सीमा से परे। हमारे जो धर्म का कोई जिस तरीके से कहते हैं ना जो प्रवर्तक नहीं है, हमारा धर्म जो है जीवन का कहते हैं हिंदू धर्म जो है एक सतत प्रवाह है। वो जिसमें अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने ला किया, जब ला करते हैं तो उसके अंदर जो है जो बताते हैं जो सोचे जो ला है उसके अंदर जो है मनुस्मृति वगैरह को जो आधार माना गया है। और धर्म की जो परिभाषा धरती जमा सोचन निग्रह, ये सब जो धर्म के लक्षण दशकों उन्होंने बताए हैं। तो ऐसे मुझे सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर परिभाषा बात लगी। और उसमें अद्रोह सर्वभूतेषु बच्चा करना जगह अनुग्रह दान शील से सदा धर्म सनातन है। मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का मन से, कर्म से, वाणी से उसके अंदर द्वेष ना होना जो सनातन धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म की इससे सुंदर परिभाषा कोई हो नहीं सकती।
कि जो किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं करता, किसी के प्रति जो द्वेष नहीं रखता। और उसके अलावा जैसा कि अब तक सनातन विश्व हिंदू महासंघ का जो लक्ष्य यही था, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम जो है ऊंच जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करना जो है विश्व हिंदू महासंघ का लक्ष्य है। हम किसी भी जाति के हों, किसी भी मतांतर को मानने वाले हों, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हों, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और जैसा आपने बताया कि हम देखते हैं कि चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो, वो बचपन से ही अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च लेके जाते हैं, साथ लेकर मस्जिद में लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी देखने में आया है कि लोगों के प्रति उतना रुझान नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो है अपने धर्म के बारे में बताएं। ना ऐसी व्यवस्था नहीं विद्यालय में है, ना घर में है, ना कोई ऐसा। हालांकि यद्यपि हमारे संत जो है प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दें। और उसी प्रकार से विश्व हिंदू महासंघ भी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें जो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उसके विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना, उसका विरोध करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। और उसके बाद एक जाति विहीन और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करना विश्व हिंदू महासंघ का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें मैं समझता हूँ हमारा जो बौद्धिक प्रकोष्ठ है वो इसमें बहुत ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी अपने आप में एक वर्ग है जो जिसके माध्यम से विचार जो है नए नए आएंगे। हम उनको उनका जो है अच्छे तरह से विचार करके उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ आज जो आप सब लोग आए हैं समय निकालकर, आप सबका जितना भी आभार प्रकट किया जाए कम है। और मैं आपका पुनः आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। I look forward to see you